recording. Okay, right. So which question we were doing today? कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग? कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे बेटा? Sir, 1 minute. चलो मोल कॉन्सेप्ट का. Yes, sir. हाँ, मोल कॉन्सेप्ट तो कर रहे थे हम लोग. तो Page number 26, question number 26. वाह क्या बात है. What a system. So nice. Page 26, question 26. That's very nice. So see, if the weight of 5.6 liters of a gas at STP is 11 gram. 11 gram. The gas is option 1 phosphine gas 2 phosgene, option 3 nitric acid, nitric oxide, option 4 nitrous oxide. Come on, solve it. Sir, what is the second option? Question. Sir, nitric means NO2 na sir. Phosgene, okay. So what is phosgene? COCl2, phosgene. Okay, children. Okay, sir. Phosgene, okay. Phosphine, I will write with different color. Phosphine, PH3. Phosphine or phosphine. Phosgene, COCl2. Nitric oxide, NO. Nitrous oxide, N2O. Now tell me, if the weight of the 5.6 liter of the gas at STP... Sir, number 4 option, sir. See, actually, this question wants to know which talent, okay? So 5.6 liter gas is this much weight, okay, children? Yes, 11 sir. gram. So actually, at STP, it want to relate volume and weight. Okay, so we know that, what we know, that 5.6 liter having 11 gram. So 1 liter will have 11 by 5.6. Therefore, 22.4 liter will have 11 by 5.6 into 22.4, isn't it? Yes, Now sir. you Yes, divide sir. it. Now you divide it 5.6 how many times? 5-4. I think 4. So it will become Sir, 44. Sir, 44, sir. So this will be the molar weight, children. Yes, sir. Molar weight. Did you understand? Because molar Yes, sir. weight is related with this much volume at STP. Okay, so 44 now, gram. so first they have touched our this talent that can we determine molar weight from the volume at STP, and after that it asking that among these which one is having 44 Whose weight is molar mass? 44? Which one is having? Tell me. Then fourth option, sir. N2O. Fourth option. Yes, See, sir. everybody, सब लोग कैलकुलेट कर लो, देखो 44 आ रहा है कि नहीं आ Is रहा a 28, nitrogen का 28 and oxygen 16, 44. Yes, sir. Second, है? Okay, fourth so option. yeah, nitro N2O. So 28
एंड इधर में ऑक्सीजन का हो गया 16। 16. हाँ, तो 8 और 9 10 4 44. I think this is clear to you. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. Sir, we can also find out the answer by the weight formula, sir. Weight formula. Like, sir, molar mass equals number of moles equals to weight by molar mass. Number of mole is equal to weight by molar mass. Yes, sir. That formula also we can find out. You tell me. I have written already. Now what to write on the weight? Sir, yes, sir, 11. Weight is 11. Okay. But we don't know, sir, mole. Wait. Sir, mole we 11, will find okay. out, na, sir. Weight Then, 11. sir, mole is 1 by 4. Mole is 1 by 4. That only. That mole is 1 by 4. How you calculate it? Sir, sir, given a sir, VSTP equals to n into Yeah. 26.4. So anyhow, whatever you are doing, you are using this only, either directly or indirectly. Yes, sir. Did you understand? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yeah. Next question. Sir, wait, sir. Sir, please please. wait, sir. Please write it down. Yes, sir. Yes. Okay, sir. So completed. Sir, let me see that. Okay. Next question is. Maintain silence. Yes, sir. In background, some noise, sir. Arey, don't fight. There is no solution in fighting. Okay, children. So let us move for next question. Okay. So Okay, so yes, beta. Question number 27. एक बात बता दूं, मैंने सारे क्वेश्चन आपको वर्क इसमें भेज दिया है। हाँ सर, अब देखा है। और आप लोग बनाइए उसको, बना के मेरे को, जो नहीं बन रहा ना उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे को व्हाट्सएप में डाल दो। ओके ओके सर। okay, sir. फिर मैं रात को बैठ के वो सब का क्वेश्चन को लेकर के एक वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। ओके सर। तो आप अपना अपना डाउट, अच्छा डाउट भेजिएगा, एकदम दिमाग लगा के, पहले जब नहीं बने तब भेजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, नंबर ऑफ मिलीमोल्स, number of millimoles in 1.0 gram of water. Option 1 1.0, option 2 18, option 3 55.55, and option 4 100. Come on. Sir, what is Okay. millimoles, sir? Can you solve it? Sir, please give me some time. Okay. So see in the question what they have given. They have told water, means indirectly they have given that molar weight of water is 18 gram per 18. mole, isn't it? Yes, sir. And in this way they have given weight. Okay, so we can calculate number of moles by weight by m, and weight Yes, is sir. 1 gram and molar weight is 18. So this is the number of moles. Okay, number of moles. Yes, sir. Now you convert number of moles into millimoles.
millimoles. Sir, 1 mole is how many? Millimole. So millimole means, you know, millimole. No, sir. No, sir. So from today onwards, you should know milli. 10 to the power minus 3 mole. Okay, children? Okay, sir. This is known as millimole. Okay? Okay, sir. Yes, sir. Okay. So if we want to write in millimole, so but we have only this much mole. So 1 by 18 Sir, into option 10 three, to sir. the power 3. We will do like this because we have to give in millimole. So this is 1000. Sir, option 3. Option 3. Wait. 1000 divided by 18. Divide 1000 by 18. Sir, 55.55. Sir, 55.55. 55.55 millimole. 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 Did you understand, children? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. See, because we have to represent in millimole. So in millimole, 10 to the power minus 3. So if we are using 10 to the power minus 3 here, to balance it, you have to use 10 to the power 3 here. And this is the whole thing which they required. Millimole. Okay, children, did you understand? Sir. 55.55 is the correct answer. Okay, Yes, sir. let me check out. Question number 27. Yes, third option. I think you got the clarity. Okay, Yes, sir. Yes, sir. next, have you written it? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. so next question. Next, question number 28. Okay, Okay, sir. question number 28. Which of the following contain maximum number of molecules? Maximum number of molecules. Okay, maximum number of molecules. Number 1, 4 gram of hydrogen. Number 2, 22.4 liter of oxygen at STP. Option 3, carbon dioxide obtained by heating 1 mole of calcium carbonate. Obtained by heating 1 mole of calcium carbonate. And option 4, 4 gram of helium. Solve it. Solve it, children. Let me see how many of you can solve it. So actually this question framer wanted to know that, do we know the molecular formula of hydrogen? Yes, I know, H2. H2. It's 2. What is the atomicity? 2. O2, 2. atomicity 2. Carbon dioxide, atomicity is 3. 3. Helium, atomicity is 1. 2. Okay. 1. Yes. Nothing is written, 1 is written. Okay, so let me see. They are asking about maximum number of molecules. Molecules. So maximum number of molecules means that there is no problem. Simply we have to calculate number of moles. Okay, sir. So see, number of mole is, in this case it is weight by molar mass. The Yes, formula sir. will be used weight by molar mass. Here it will be used as, okay, volume at STP divided by STP. 22.4.
Here again, Yes, sir. here again they wanted a chemical reaction, okay? Chemical reaction, okay? And here again Yes, they sir. wanted W by M. So you know that 1 mole of calcium carbonate when heated, you will get 1 mole. So here directly we are getting 1 mole. Here 1 the mole. weight is 4 gram. Here the weight is 4 gram, children. And molar 1. weight is also 4 grams. So here also number of 1. mole is equal to 1. Sir, Here number you one can option. see, here we can see that the volume is 22.4 and 22.4. yeah, again we are 22.4. getting number of mole 1. Here we can see that it is 4 and molar weight is 2. So 2 moles are there, children. Did you understand? Yes, sir. Yes, sir. So in which case number of moles are more? Number one. Sir, 1. Number 1. So number 1 is the Hydrogen. correct option. Number 1 is the correct option, children. Remaining everything has only 1 mole, 1 mole, 1 mole like this. Question number 28. 28 ka first option is the correct option. Did you understand Yes, this sir. question? Yes, sir. Anybody having any problem? No, किसी को sir. कोई No, problem? sir. Oh, sir. कैसा था question ये? Sir, very easy. अच्छा था. वेरी इजी था. देखो सब चीज को टच कर लिया. इजी इसलिए हुआ क्योंकि आपको सब मालूम था कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं. ओके हाँ सर. Yes, sir. सर एक डाउट था. हाँ बोलो बेटा. सर इधर तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोगों को पूछ रहा है ना, आप नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं पूछ रहा है. तो जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होता है उसी का मॉलिक्यूल्स ज्यादा होता है, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर. यस सर. सो बाकी सब में n का वैल्यू 1 था, केवल हाँ, फर्स्ट केस में n का वैल्यू 2 था. भाई समझ में आया? हाँ सर समझ गए. ओके इसलिए बस खाली मेरे को डाउट पूछते रहिए. मैं आपको डाउट बताते रहूंगा. ओके सर मेरा स्क्रीन नहीं आ रहा है. तुम्हारा स्क्रीन नहीं आ रहा है? ओके नहीं सर. ओके रुको मैं कुछ करता हूँ. सर आ रहा है सर मेरा. आ रहा है ना? सर. मेरा भी आ आ रहा रहा है. मेरा भी आ रहा है. ठीक है. कहाँ गया वो? ठीक अभी आ रहा सबका? Yes, sir. हाँ सर. हाँ सर. मेरा नहीं आ रहा है. अब आ रहा है. ठीक है. ये क्या स्क्रीन बता रहा है? ये बता रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन, पॉजिटिव चार्ज, ओके, देन हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी. अब कितना पुराना लग रहा है ये देखने में? हाँ सर. तब क्योंकि आप ये सब समझ चुके हैं. थोड़ा सा आप लोग को महसूस हुआ कि यस वी हैव एंटर्ड इनटू द डेप्थ ऑफ केमिस्ट्री स्लोली. हाँ सर. Yes, sir. Yes, sir. अचानक हम लोग केमिस्ट्री में अब आप लोग एंटर कर चुके हैं एक्चुअली. हाँ सर. बट इंटरेस्टिंग भी लग रहा है सर. इंटरेस्टिंग भी लग रहा है. Yes. Yes, sir. ये तो अच्छी बात है आपके लिए. सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना तो फर्स्ट प्रायोरिटी है. चलिए तब मैं पूरा कोशिश करूंगा कि सब्जेक्ट आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगे, लेकिन साथ साथ में प्रॉब्लम्स वगैरह सब बनाना चाहिए. मतलब सब चीज को लेके चल रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे. क्वेश्चन नंबर 29. ओके so a pair of gases having same number of molecules, a pair of gases having same number of molecules और वही सेम नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा. नंबर मॉलिक्यूल पूछना मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकालना है.
ठीक है, एक दिन आपको भी लगेगा कि नहीं ये क्वेश्चन चलिए पास करिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसमें कुछ है ही नहीं, ये तो हम लोग को मालूम है कुछ भी नहीं है। ये देख लो ऑप्शन देख लो, 22 ग्राम of CO2 and 72 ग्राम of N2। दूसरा ऑप्शन सब में तो ग्राम ग्राम दिया, क्या प्रॉब्लम करूं बताओ। 11 ग्राम of CO2 and 28 ग्राम of N2। हलवा है ये, हलवा। 44 ग्राम of CO2 and 7 ग्राम of N2 for 11 ग्राम of CO2 and 7 ग्राम of N2। चलो बनाओ, जल्दी बनाओ। तो ये क्या है क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन कोई कैसे दे नंबर सकता है 4 मुझे? सर, नंबर सर 4। 4 सर 4 नंबर 4 सर, क्वेश्चन कोई मेरे को कैसे दे सकता है बताओ? नंबर देख कौन सा ऑप्शन बोला? 4 सर, हाँ, ऑप्शन 4। नंबर 4। यस यस सर सर, क्या क्या पूछा था? सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है ना? हाँ यस सर। सर, ओके, तो सेम नंबर ऑफ मोल्स किस में आएगा? तो देखते हैं, n इक्वल ऑप्शन टू 4 में। W/m, तो इसमें W 11 by M। लगाते हैं और इसका 44 आएगा CO2 का, यस सर 1 Yes, by sir। 4 यहाँ 4। निकालते हैं तो 7 आ रहा है 7 और by इसका 28 मोलर और वेट नीचे नाइट्रोजन 28 का कितना होता है? 28 28। 28। तो 1 by 4 11 by 1 4। जा 11, 11 4 जा 44, 4 मतलब n इक्वल टू 1 by 4 0.05। 25। ओके, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, मतलब 0.25 0.5। ये दोनों में सेम है, समझ सेम गए? है। हाँ यस। सर। यस सर, देखिए अब मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ सेम नहीं है। यहाँ पर था 0.25, यहाँ था 0.25, यहाँ था 0.25, यहाँ पर 5 था यहाँ था 1, 1 यहाँ पर था 1, यहाँ पर था 0.25, 5 यहाँ पर था 0.5, यहाँ 5 पर था और 3 72 का मतलब हो गया 3 72, 3 28। सर कितना बार में कटेगा बेटा? 3 सर हाँ, 3 बार में नहीं, कटेगा, 3 तो नहीं, यहाँ 3 नहीं। n3 है। आई थिंक यू गॉट दिस क्वेश्चन, ओके? यस सर फॉर्मूला क्या था? मेन नंबर ऑफ मोल्स निकालना था, W/m, W/m, n इक्वल टू W/m। वेरी इजी, वेरी इजी। Yes sir. Sir, please increase the level. Oh, very nice, very nice. I am very proud of you, beta. Very proud of you. Just tell me your name. The Somojit. Okay, now the next question only you will going to solve it. Okay. यस सर यस सर Okay. See, the next question is question number. Slowly I will increase. That's why I have given you all question to you. Okay. Now it is your chance to do all the problems because I am taking from the root, from the bottom line. Okay. So Okay, sir. I have to carry all the student. But once I have sent all material to you, now it's your duty to complete all the level fatapat, and give me the difficult question to me back. Okay. Okay sir. Yes, sir. Okay. So today you are going to do this only. The total number of, मैंने केमिकल बॉन्डिंग का भी सारा क्वेश्चन भेज दिया था ना? सर मेरे पास नहीं है सर केमिकल बॉन्डिंग का। है बाकी सर लोग है के सर पास है? है सर ओके, भेजे थे सर ग्रुप पर। हाँ ठीक हाँ है। सर सर प्लीज रीसेंड करिएगा। हाँ कर देंगे। नहीं, ग्रुप में रीसेंड नहीं करेंगे क्योंकि वो लोग का फिर भर जाएगा गैलरी। समझ गए बात? सर ग्रुप में भेजेंगे तो होगा मेरे पास। हाँ ग्रुप में भेजा हुआ है। हाँ तब है तब। चलिए मीडिया में जाके देख लेना। ठीक, देखो और कुछ, और कल हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे सवेरे से लेके शाम तक, जो परसों टेस्ट होगा उसके लिए। ठीक है? ओके सर। सो हाँ, क्योंकि सिलेबस हम लोग का कंप्लीट हो गया है, तो हम लोग कल पूरा प्रैक्टिस करेंगे एकदम। इसलिए बोल रहा हूँ आज ये सब पूरा खत्म कर लीजिए। आज पूरा गिवन टास्क को खत्म कर लीजिए। द टोटल वॉल्यूम
the total volume of mixture of 2 grams of helium and 7 gram of nitrogen under STP condition is, come on, solve it. Option सर 1, आगे चल के टेम्परेचर और प्रेशर वो लोग बदल भी सकते हैं क्या? पूरा बदलेंगे कि अभी ऐसे ही थोड़ी छोड़ेंगे, पूरा बदलेंगे अभी। ये तो अभी ए फॉर एप्पल चल रहा है अभी, समझ गए बात को? हाँ सर समझ गए। ए फॉर एप्पल। बाद में पता चला ए से कितना क्वेश्चन था, सॉरी बहुत ए से सारा। कितना वर्ड है, बहुत सारा। बहुत सर सारा। ऑप्शन नंबर 1 सर। बना लिया ना इतना जल्दी? हाँ सर। देखिए, the total volume of mixture of 2 grams of helium and 7 gram इतना। तो आपको वही मोल निकालना है, जिसका मोल ज्यादा रहेगा तो वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, और क्या, ठीक है? तो ओके सर। यस, मोल निकाल लीजिए पहले, मोल 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 मोल। चलिए इसका ऑप्शन 1 सर। ऑप्शन 1 सुंदर सर सा दोनों बना। का ही मोल 0.5 है। सच में ऐसा है क्या? हाँ सर। देखते हैं, रुको जल्दी रुको। 2/4 मतलब 0.5 एंड 7 बाई नाइट्रोजन का तो 28 होता है ना। यस सर। तो अच्छा 2 बाई हीलियम है ना 4, तो 2/4 कितना होगा? 0.5। 1/2। हाँ 1/2 मतलब 0.5 और 7/28 मतलब 0.25 है। 0.25। 0.25 तो ये 50 है, 25 है, तो टोटल मोल आपके पास आ गए 0.75, isn't it? यस सर। ओके, सो पूछा है, क्या पूछा? टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मालूम है ना, VSTP इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4 लीटर। बात खत्म। 22 सर ऑप्शन 3। रुको, वॉल्यूम कितना बताया था हमने? मोलर वॉल्यूम कितना है? 22.4 लीटर। ओके, यस सर। तो आंसर कितना आएगा बोलो? 16.8 लीटर। पहला बात तो देखो किसको किसको हम काट देते हैं। 0.75 है ना? यस सर। 3/4 लिख सकते हैं सर। पॉइंट, हाँ वेरी नाइस। ऐसे ऐसे बोलते जाओ, मेरे को इजी लगेगा कि एन को भैया हम लोग नंबर 4 तो नहीं होगा। 3/4 लिख सकते हैं ना, हाँ सर। और इसको बड़े आराम से काट सकते हैं। 5 पॉइंट यस कितना? सर। 16.8। 16.8। एक बार मल्टीप्लाई कर दूं। 3 6 18 3 5 15 1 16। वेरी नाइस। तो ये सब थोड़ा मिटा देता हूँ, कल से ना पूरा ग्रीन स्क्रीन अलग से लगा के रखूंगा। तो हाँ। चलिए, हाँ अभी हम लोग बात करें तो कितना, तो 5.6 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, 18 16.8 है कहीं पर? यस सर ऑप्शन थर्ड 3। ऑप्शन। कटाक, ऑप्शन थर्ड। डू यू अंडरस्टैंड? रॉन्ग। यस सर। कटाक। तो रुक जाओ, 30 का कितना आया है? 30 का 3। यस, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन sir. बनाओगे? यस सर। यस तो सर। इस तरह के क्वेश्चन आपको बनाने हैं, ठीक है? मैं अब थोड़ा सा डिफिकल्ट दो क्वेश्चन। कितना मिनट हाँ बाकी सर है? बिल्कुल। हाँ सर। पहले तो टाइम देखो कितना है, उसके हिसाब से। टाइम 3:34। 3:35 सर। 34। 35 सर, 1 मिनट का डिफरेंस है सर। ओके, तो अभी हम लोग को एग्जैक्टली कितना मिनट बाकी है पढ़ने के लिए? 15 मिनट। 15। ओके, नाउ तो ऐसा करता हूं मैं, थोड़ा सा मैं
क्वेश्चन नंबर है ये पेज नंबर 28, ओके। और क्वेश्चन नंबर है 52, ठीक है। और लिखा हुआ है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ओके H3PO4 is required to completely neutralize 120 gram of NaOH. How many question mark? Option 1 49, option 2 98, option 3 196, option 4 9.8. Come on, solve it. सौम्यदीप, यस सर। थोड़ा लेवल बढ़ाए। हाँ सर। चलो जल्दी सॉल्व करो। ऐप काम कर रहा है ब्रेन का? हाँ सर। हाँ सर चला रहे ठीक है, ठीक। ऐप काम करते रहना चाहिए बस। अगर वो सर्च करने लग गया मतलब काम हो रहा है कुछ ना कुछ, कंटिन्यूअसली गोल 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 घूम रहा है तब प्रॉब्लम है। चलो, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl4 इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 120 ग्राम ऑफ NaOH? अगर मेरे हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो बताना। हाँ सर बताएंगे। ओके। सर थोड़ा और सा वेट कर दीजिए ना। किसी को अनम्यूट करना तो बताना भाई। कोई एक्टिव पार्टिसिपेट करना होगा तो हाथ उठा लीजिए। थैंक यू सर। ओके, चलिए। हाँ, बन जाएगा कि मैं हेल्प करूं? ओके, अंशु? यस सर। राइट। चलो मैं हेल्प कर देता हूँ। हाँ, good sir. हाँ यस सर हेल्प। चलो बनाओ बेटा, बनाओ, जल्दी करो। हेलो, हाँ सर बोलिए। हाँ तो स्टार्ट कर देंगे, उसको टाइमिंग दे दीजिए। अरे क्या दिक्कत है सर, जुड़ते चले जाएंगे सब लोग। नहीं, सवेरे क्या, हाँ एग्जैक्टली उतना ही बजे। हाँ ठीक है। हाँ चलो, बन जाएगा बेटा, मैं हेल्प कर दूं, जल्दी बोल दो, शर्माओ नहीं। हाँ सर कर दीजिए सर। एकदम एकदम। सौम्या थोड़ा लेवल बढ़ाने बोला तो मैंने हल्का सा बढ़ाया है बस। हो गया सर उसका। हाँ ठीक है, इसीलिए बोल रहे थे, सिस्टमेटिक वे से जाओ, सारा प्रॉब्लम सब सॉल्व करते जाओ। हम बढ़ा देंगे लेवल, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग कर नहीं पाएंगे। हाँ, ये इसलिए बोल रहा हूँ, स्लोली स्लोली जाओ, इसीलिए मैंने आपको कंटेंट दिया है, उसको एकदम अच्छा से सॉल्व करो। देखो इसमें करना क्या था, अब आप बोलोगे ओहो ऐसे सॉल्व करना था क्या। देखो ये एक्चुअली अभी तक जो कर रहे थे ना, वो खाली कंपाउंड और मॉलिक्यूल जैसा सिंगल सिंगल था, वहां कोई रिएक्शन नहीं हो रहा था। आप ध्यान दिए होंगे। हाँ यस सर। हाँ, बात करते ही बेटा, बात करते रहिए हमसे। हाँ अभी यस तक सर। आपने जितना भी देखा था ना, वो इंडिविजुअल थे वो लोग, इंडिविजुअल। अब यस ये सर। जो प्रॉब्लम था ना, ये प्रॉब्लम रिएक्शन का है, ये केमिकल रिएक्शन का है, ठीक है।
तो इसलिए पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो आपको तो अच्छा। बचपन से मालूम है एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आपको देखिए कितने कितने आराम से उसने आपको फास्फोरिक एसिड दे दिया है। ठीक है, कहीं नहीं लिखा कि ये एसिड है करके, कि बच्चा थोड़ा भी दिमाग लगा ले कि एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर। ओके, लेकिन देखिए दिया है ये, इसका नाम है फास्फोरिक एसिड, इसका नाम है बेस। और अब देखिए रिएक्शन हो जाएगा 3NaOH plus H3PO4 gives you Na3PO4 and जो भी 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिल जाए। तो आपने क्या देखा, जहां कुछ नहीं लिखा रहता वहां 1 लिखा रहता है। ये मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं, जहां कुछ नहीं लिखा वहां 1, जहां लिखा है मतलब लिखा है। नंबर 2 सर, ऑप्शन नंबर 2। देखा, अब देखा, तो अब देखिए तो अब देखिए कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 120 ग्राम ऑफ NaOH। तो अब आप देखिए 120 ग्राम ऑफ NaOH का मतलब NaOH का वेट दिया हुआ, तो हमको उसको नंबर ऑफ Yes, मोल्स sir. में सर। कन्वर्ट करना है। 30। नंबर ऑफ मोल्स में होता है W/M, तो W दिया है 120 और NaOH का मोलर वेट होता है 40। 40। तो 1 और ये 3 बार तो 3 3 मोल। तो आप खुद देखिए 3 मोल को कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए 1 मोल H3PO4 चाहिए। तो आपको फिर यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो अब आपके पास भाई मोल तो आ गया है। हाँ, फास्फोरिक एसिड का मोल आ गया है 1 मोल। यहाँ बैलेंस रिएक्शन से पता चला कि इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा। सवेरे बताया था मैंने भी कैसे पढ़ा जाता है। तो ये 1 मोल हो गया और फास्फोरिक एसिड का मोलर वेट हमें मालूम है H3 निकाल लेंगे, H3PO4 करीब 98 के आसपास 97. 97. 97 क्यों आ रहा है बेटा? 3 हाइड्रोजन 1 फास्फोरस 4 ऑक्सीजन। 3 हाइड्रोजन का मतलब 3, 1 हाइड्रोजन का मतलब 1 फास्फोरस का मतलब 31, 4 ऑक्सीजन का मतलब 64, 4 5 6 7 8, इधर में आ गया 6 3 9 98 98। तो W इक्वल टू 98। तो ये रहा आपका ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। हटा टो समझ में आई बात? यस सर। थोड़ा लेवल बढ़ा दूं? पहले वाला ठीक है सर। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ। अब लेवल बढ़ गया है, अब मैं पीछे नहीं आऊंगा। ठीक है, अभी इसी लेवल पे क्वेश्चन चलेगा। फिर बीच में कोई डिस्टर्ब करेगा ना मेरे को कि लेवल बढ़ा दीजिए सर, तब बढ़ा दूंगा। फिर मैं पीछे नहीं आऊंगा। ठीक है, ओके सर। फिर पीछे इंडिविजुअल आऊंगा। फिर किसी को इंडिविजुअल डाउट होगा मेरे को व्हाट्सएप करेगा। ठीक है, और नहीं तो आप ही लोग ग्रुप में बैठ के हमसे बात कर लीजिए। कोई जब बीच में करते करते हाई लेवल बोल दिया ना, लेवल बढ़ जाएंगे। उसी समय रिमेनिंग पर्सन को बोलना है कि वेट सर, रुकिए, अभी इसी लेवल पे कुछ क्वेश्चन और दीजिए। समझ में आई बात? यस सर। हाँ, तुरंत बोलेंगे, एकदम तुरंत बोल देना। नहीं तो सौम्या ना अपने मेहनत करेगा नहीं करेगा, दूसरे से करवा देगा। हम लोग से करवाएगा। तो अब देखो, एक क्वेश्चन है कि हाउ मच वॉल्यूम, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है ये, उसी पेज का ही है। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट STP। फिर ये इजी क्वेश्चन है लग रहा है। इज liberated by combustion of 100 centimeter cube of propane. Okay, option 1 100 cc, 102,
200 cc. Option 3, 300 cc. Option 4, 400 cc. Come on. सर सीसी क्या है? सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब Centimeter cube. अच्छा सर सॉरी गलती हो गई। क्यूबिक गलती हो गई। क्यूबिक सेंटीमीटर। स्टाइल, केमिस्ट्री में स्टाइल बताया ना कितनी बार। भूल गया था सर। क्यूबिक सेंटीमीटर। सर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम है। ठीक है। अच्छा लीटर से हम लोग को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। How much volume of CO2 at STP is liberated by combustion of propane? 2 मिनट सर ट्राई करते हैं एक बार। ट्राई करो बेटा। ट्राई करने में एकदम, अब आप समझ गए कि कितने क्वेश्चन है जिसमें एकदम ट्राई करना पड़ेगा। बन गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ट्राई नहीं तो फिर हमसे पूछना है, फिर हम बता देंगे, फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर आप उस लेवल का क्वेश्चन बनाने लगोगे, फिर एक दिन और लेवल का बनाने लगोगे, फिर और लेवल, फिर पता चलेगा कोई लेवल ही नहीं बचा। जिस दिन कोई लेवल नहीं बचा मतलब आप फिर आपसे कोई टक्कर नहीं ले सकता। कार्बन होता है सर C3H8 प्रोपेन। हाँ C3H8 सर। किसका? प्रोपेन का। हाँ सर। प्रोपेन मतलब ये देखिए ना, CH3 CH2 CH3 हाइड्रोजन या 3 कार्बन वाला ऐसा वाला मॉलिक्यूल था ये प्रोपेन। मतलब C3H8 दिस इज द प्रोपेन। ये भी गैस है। हाँ ये भी गैस है, CO2 भी गैस है, और सब STP पे ही काम करना है, STP पे। सर नंबर ऑप्शन 3 सर 300 सीसी। 300 लॉक कर दो। यस सर। हाँ सर लॉक कर दो। क्वेश्चन नंबर 53 का 3 आ रहा है आंसर। यस करेक्ट आंसर है। कैसे आया बेटा? सर वो रिएक्शन लिखा था C3H8 पहले उसका रिएक्शन लिख लेना हम लोग को। बाकी जिसको समझ में नहीं आया हाँ थोड़ा देख लो। प्लस 10O2 because 3CO2 plus 4H2O. ओके द सॉल्यूशन इज, ठीक है, प्रोपेन है C3H8। कंबशन का मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला दो उसको, बर्न। सो यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और कुछ नहीं मिलेगा। तो 3 कार्बन है, इसको कांस्टेंट रखना है बेटा। तो यहाँ 3 चला जाएगा, तो अब 8 हाइड्रोजन है। तो हम ये लोग ऐसा करते हैं 4 लगा देते हैं, ठीक है। टोटल 10। 4 दूनी 8, तो 8 आ गए इधर में। ऑक्सीजन हो गए 3 दूनी 6 और इधर 4 10 हो गए। तो यहाँ पर 5 लगा देंगे, 5 लगा देंगे। हालांकि हम लोग को इसकी जरूरत नहीं है, हम लोग को ये जरूरत है, देखो सब STP में हो रहा है, ठीक है। तो आपको मालूम है वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे ना, वॉल्यूम के हिसाब से ध्यान सुनना आप, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो सेम रहता। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ। यस सर। टक 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 यहाँ आ जाओ डायरेक्ट, जिसका मोल चाहिए उसके बारे में मुझको बात करना है। हेलो हेलो, गुड इवनिंग, गुड, ओके। हाँ जल्दी थोड़ा ब्रीफली थोड़ा जल्दी से बोलिए, मैं इम्पोर्टेंट बात बताइए। हाँ चल रहा है ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन चल रहा है मैम। हेलो, तो ये बात समझ में आया
देखो रेशियो Yes, कितना है, sir. 1:3, ये मोल्स का रेशियो है 1:3. और वही वॉल्यूम का Yes, sir. रेशियो होगा। तो अब आप देख लो ना, किसका वॉल्यूम पूछा आपसे, 100 कार्बन सीसी ऑफ डाइऑक्साइड का। प्रोपेन। तो अगर Pure अरे to बाबा, तो आप अगर यहाँ 100 लिखोगे तो यहाँ पर आपको 300 लिखना पड़ेगा। वो 300 300 लिखेंगे। समझ में आया? इसीलिए आंसर 300 आ गया। किसको नहीं समझ में आया Yes, क्वेश्चन? sir. Yes, sir. सबको समझ में आया बेटा? Yes, sir. सर ये प्रॉब्लम किसको का Yes, मालूम है? sir. जो ये Yes, नहीं, sir. जो ये नहीं मान रहा है कि जो मोल का रेशियो और वॉल्यूम का रेशियो सेम होता है। तो अगर 1 है तो 3 है, तो 100 है तो यहाँ 300 है, sir. और क्या? समझ में आई बात? Yes, sir. हाँ sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो नेक्स्ट क्वेश्चन। Time हो सर गया sir. हाँ बोलो। 51 351. Yes, sir. Time is over. ओ, आज की सभा यहीं समाप्त होती है, क्योंकि समय के बता दिया। इतना ये पूछता है रे। सांप कौन आ जाता है बीच बीच में एकदम। जो कर रहे हैं उसको बड़ा खुशी हो रहा है। चलो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है? जिसको कंटिन्यू करना होगा वो नेक्स्ट क्लास में आ जाओ, ठीक है? सर चलो बाय बाय। Sir, join कर लेगा। ओके सर।